ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे आप लोगों को पता है कि फिजिक्स में भी जो फार्मूला है वो बैकबोन होता है, क्योंकि फार्मूला से ही आपका सब कुछ होना है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, ग्राफ हो, इवन इफ डेरिवेशंस में भी यही काम आता है। इसलिए जैसे आप लोगों को बताया था, इसको मॉकअप करना है पूरा। तो अभी हम शॉर्ट टाइम पीरियड में पूरा बुक 1 का फार्मूला करके देखते हैं। सबसे पहला फार्मूला ये तो आप लोगों को पता होगा, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर 1/4πε0 Q1 Q2 R²। ठीक है। And inside the medium it will be 1/4πε Q1 Q2 R², where epsilon is the permittivity of the medium and epsilon naught is the permittivity of free space. And epsilon can be epsilon r into epsilon naught, means the permittivity of a medium can be a number into the permittivity of vacuum. This number is called relative permittivity or dielectric constant, epsilon r. ठीक है। So epsilon r is equal to epsilon by epsilon naught. So we can write down the force inside the medium as 1/4πε Q1 Q2 R² or 1/4πε epsilon naught Q1 Q2 R². Now come to electric field. Electric field is F by Q naught, the force experienced by unit positive charge when it is placed inside the field of a source charge. And as you know, F is equal to 1/4πε Q1 Q2 R². So when you put the value of F, it will be electric field will be 1/4πε0 Q by R². And electric field is a vector quantity. The unit is Newton by Coulomb. ठीक है। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा ड्रॉ भी कर लेता हूँ, पेन ले लेता हूँ मैं। ओके, so this is electric field, this is a vector quantity, and the unit of electric field is Newton by Coulomb. Now this is dipole moment related with electric dipole. This is the dipole moment. It is a product of either charge and the distance between them. Here 2L is the total distance of the total distance between the two charge, not the twice of the length. 2L cube. The unit is Coulomb into meter. An electric field on axial line and equatorial line 1/4πε0 2p by r cube. Here electric field is inversely proportional to r cube for a dipole, and for a point charge it is inversely proportional to r². Okay, and on equatorial line this is p by r cube. It means here this is p and in axial line this is 2p. It means the electric field, if you go same distance on axial line and equatorial line, the electric field on axial line is double that of equatorial line. ठीक है। Next, force on a charged particle in a uniform electric field. It means if there is an electric field and if you keep a charge, then what is the force acting on it? It is Q naught into E from the formula of electric field. E is equal to F by Q naught, अभी हम लोग पढ़े थे ना। यहाँ से F is equal क्या होगा? Q naught into E। ठीक है। नेक्स्ट, टॉर्क ऑन डायपोल। अभी आपका ये एग्जाम में भी आया था। टॉर्क ऑन डायपोल क्या होता है? टाउ इज इक्वल पी साइन थीटा। दिस इज द टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? कैन एनीवन टेल? यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, माइनस पी ई कॉस थीटा, और कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, माइनस पी ई कॉस थीटा। This is the potential energy stored in an electric dipole in a uniform electric field. Here the starting angle is taken as 90 degree. Okay. Next is Gauss law. Gauss law can be stated in two ways. One in terms of charge and another in terms of field. This is in terms of charge. Phi is equal to 1/epsilon naught times the charge inside a Gaussian surface, or phi is equal to Ea cos theta. That is in terms of electric field. And by using Gauss law you can derive 3 electric field. Linear charge, plane sheet and spherical cell. Linear charge, this is 1/4 lambda by 2 pi epsilon naught r. Here we have seen electric field depends upon 1 by r, 1 by r² as well as 1 by r cube. And for plane sheet this is sigma by 2 epsilon naught. And for spherical cell, inside the spherical cell it is 0. On the surface it is maximum, this is on the surface, and outside this will decrease. And what is the shape of graph? The graph is like this. Here on the surface it will increase and then it will start decreasing. Okay, so this is about the important formula in chapter 1. Next, move to chapter 2, that is electric potential energy, electric potential and capacitance.
So electric potential energy between two charges separated by distance are 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r, and potential energy is scalar quantity. And this is the formula that I was telling. The electric potential energy stored in an electric dipole inside uniform electric field is minus p cos theta 2 minus cos theta 1, and if we take the starting angle as 90 degree, then this is minus p cos theta. So you have to remember this formula. And electric potential V is equal to W by Q. W by Q means, here suppose one of the charge is Q naught or unit positive charge, then this will be 1/4 pi epsilon naught Q by R. And this is the relation between electric field and potential. Electric potential is the negative line integral of electric field. Okay. Similarly, electric potential due to electric dipole on axial line. This is electric potential. So on equatorial line, this will be 0. On equatorial line, always the electric field is, electric potential is 0. And on axial line, electric potential is inversely proportional to r square. This you have to remember. In a dipole, the potential is inversely proportional to r square, and in a point charge, the electric field is inversely proportional to r square. इस हिसाब से कन्फ्यूजन होता है, इसको ध्यान से याद रखना है, ठीक है. एंड एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये कैपेसिटर से हम डिराइव भी कर सकते हैं. जैसे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल क्या होता है, Q बाय V. फॉर स्पेरिकल कंडक्टर ये क्या होता है, जैसे अगर हम स्पीयर लेते हैं, स्पेरिकल कंडक्टर लेते हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है. ये R है रेडियस ऑफ द स्पीयर, ठीक है. कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक, जैसे विदाउट डाइलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, एंड विथ डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाय K. और इसमें अगर कम्प्लीटली अगर हम कैपेसिटर के दोनों प्लेट को डाइलेक्ट्रिक से पूरा कम्प्लीटली फिल कर देते हैं, तो क्या होता है, D इज इक्वल टू T हो जाएगा. तो D माइनस D कैंसिल होगा, तो दिस विल बी K एप्सिलॉन नॉट A बाय D. मतलब अगर डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो हमारा कैपेसिटेंस क्या होता है, K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यहाँ पर रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है. रेजिस्टेंस में जो पैरेलल में होता है, यहाँ पर वो सीरीज में होता है, ठीक है. फॉर्मूला से देख पा रहे हैं, ये पैरेलल में देखिए रेजिस्टेंस का जो सीरीज फार्मूला है यहाँ पर पैरेलल में आता है, ठीक है. एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का 3 फार्मूला है, 1 टर्म्स ऑफ चार्ज एंड Q स्क्वायर बाय 2C हाफ CV स्क्वायर एंड हाफ QV, ठीक है. तो ज़रूरत के हिसाब से हमको फार्मूला यूज करना पड़ता है. जैसे पोटेंशियल कांस्टेंट बोला और एनर्जी स्टोर और कैपेसिटेंस का बीच का ग्राफ पूछा, अभी आपका प्री बोर्ड एग्जाम में भी आया था, तो यू हैव टू यूज दिस फार्मूला. चार्ज कांस्टेंट बोलेगा तो ये फार्मूला यूज होगा, ठीक है. तो सिचुएशन के हिसाब से उसको यूज किया जाता है, ठीक है. ये आपका पोलराइजेशन, मतलब डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो होता है, अगर डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच अगर रखा जाता है, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है वो एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन नेट. मतलब ये हम क्लास में डायग्राम बनाए थे, आपके क्लास वर्क कॉपी में, वहाँ से देख सकते हैं. जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एप्सिलॉन R टाइम्स कम होता है. एप्सिलॉन बाय मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एप्सिलॉन R होता है, ठीक है. ये जैसे ये K अगर नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन नेट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या होगा, एप्सिलॉन मतलब वैक्यूम बाय K आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब फार्मूला आपको पता है. करंट का फार्मूला dQ बाई dt होता है. ये आपका ड्रिप वेलोसिटी का फार्मूला है, A इंटू टाउ हो गया. उसके बाद ड्रिप वेलोसिटी का और फार्मूला है E बाई एम इंटू टाउ, EV बाई LM इंटू टाउ. ये अलग अलग फार्मूला इसीलिए है, करंट का साथ I इक्वल NEABT सब याद करना है. ये करंट डेंसिटी, ड्रिप वेलोसिटी, क्योंकि कौन सा फार्मूला मतलब क्या पूछा है वहाँ पर, उस हिसाब से वो फार्मूला को यूज किया जाता है, ठीक है. ये रेजिस्टेंस का फार्मूला है L बाई, इसी से ही आया है. ये करंट का फार्मूला से रेजिस्टेंस का फार्मूला आया है, ठीक है. रेजिस्टिविटी का भी फार्मूला है. तो ये सबको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है. तभी जाकर आप इसका जो क्वेश्चन है उसको बना पाएंगे. और ह्यूस्टन ब्रिज का आप लोगों को पता है, P बाई Q इक्वल R बाई X होता है, जहाँ से हम अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं. और ह्यूस्टन ब्रिज का जो और प्रैक्टिकल में है उसको बोला जाता है मीटर ब्रिज, ठीक है. वहाँ पर एक वार को P और Q का काम करता है. तो L होता है P, 100 माइनस L होता है Q. तो P X का फॉर्मूला R इंटू 100 माइनस L बाय L होता है, ठीक है. ओम्स लॉ क्लास 10 से भी आप पढ़े हैं. V इक्वल RI, R इक्वल रो L बाय A होता है, ठीक है. ये अल्फा जो है ये को टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोला जाता है. जैसे एक
वायर का अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो किस रेशियो से इंक्रीज होता है उसको बोला जाता है अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर आप फाइनल रेजिस्टेंस टी टेम्परेचर के बाद क्या होगा इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये आपका वोल्टेज एंड ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ इक्वल क्या होता है, दैट इज द पोटेंशियल ड्रॉप इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल। ये पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल है, ये पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। इन दोनों को जब जोड़ा जाता है तो ईएमएफ होता है। और ईएमएफ मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर मेजर कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, उसके लिए पोटेंशियोमीटर यूज किया जाता है। ये अभी हमारे सिलेबस में डिलीटेड है। ठीक है, और ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया। इलेक्ट्रिक पावर, करंट इनटू वोल्टेज, ये भी क्लास 10 से आप लोग पढ़े हैं। जैसे हीटिंग डिवाइसेस होता है ना, यहाँ से आप लोग को थोड़ा सा अब याद करना पड़ेगा। यहाँ तक तो आप लोग जो चैप्टर 1, 2, 3 है मैक्सिमम फार्मूला क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े थे। यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब मैग्नेटिज्म, जैसे बायोट-सैवर्ट्स लॉ है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ यूज किया जाता है टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है फॉर्मूला, μ0/4π IdL/sin θ/r²। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में भी इसको आप लिख सकते हैं टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। इसी को यूज करके जब हम यहाँ पर सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप क्या होता है, n∗I/2r, ये सब फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। n∗I/2r होता है या r होता है। एक्सिस में ये फॉर्मूला होता है μ0I²/2a² + x² × 3/2। ये एक्सिस में है और ये सेंटर में है। ठीक है, वैसे ही आपका एम्पियर्स लॉ है। एम्पियर्स लॉ क्या है, ये आपका गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा है, ये एम्पियर्स लॉ है। तो यहाँ पर क्या था, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज कर्व इज μ0 टाइम्स द करंट इनसाइड इट। ठीक है, इसको यूज करके हम सोलेनॉइड और एक स्ट्रेट कंडक्टर का निकाल सकते हैं। स्ट्रेट कंडक्टर का क्या होता है, μ0I/2πr, इसी से ही निकल जाएगा। ये dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2πr, तो μ0I/2πr हो जाएगा। और इसको अगर आप सोलेनॉइड में जाएंगे तो μ0n I0 होता है। यहाँ से लॉरेंज फोर्स मतलब अगर एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है उसके बीच अगर छोड़ा जाए तो कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स ये है और मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स ये है। ठीक है, साइक्लोट्रॉन ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स के ऊपर बेस है। यहाँ पर आपको बताया गया था दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी टर्म है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज ए फोर्स ऑन ए चार्ज ओनली इफ इट इज इन मोशन, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई चार्ज ऑन ए चार्ज वेदर इट इज इन रेस्ट और इन मोशन। ठीक है, यहाँ से हम लोग पढ़े थे, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी किए थे कि अगर एक अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन 90 डिग्री में अगर एंटर होते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में तो किसका रेडियस ज़्यादा होगा। ये सब आपके क्लास वर्क कॉपी में अवेलेबल है। ये रेडियस का फॉर्मूला है, यहाँ से आप प्रोटॉन का मास, अल्फा पार्टिकल का, ये फार्मूला अगर याद होगा तो आप निकाल पाएंगे फिर। ठीक है, ये वेलोसिटी का फार्मूला यहीं से आया है। ठीक है, ये सबको याद करना पड़ेगा। टाइम पीरियड का वही फार्मूला है, टाइम पीरियड का फार्मूला 1/फ्रीक्वेंसी, टाइम फ्रीक्वेंसी क्या होगा 1/टाइम पीरियड, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इससे आ जाएगा। ओमेगा इक्वल क्या होता है 2π/f होता है, तो 2π/f करके ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो आपको पूछा होगा वही। ठीक है, ये तो फोर्स हमने चार्ज पार्टिकल का खत्म हो गया। अगर पूरा का पूरा कंडक्टर है तो कितना फोर्स होता है ILV/sin θ। और अगर उसी एक कंडक्टर ना करके अगर आप लूप बना दें, जैसे ये प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होगा NIAB/sin θ। टॉर्क हम लोग डेरिवेशन किए थे, 5 मार्क डेरिवेशन भी एग्जाम में आता है। ठीक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अगर लेंगे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आपको बताया गया था अगर मैग्नेटिक पोल का शेप अगर ऐसे कॉन्केव शेप का होगा उसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो NIAB होगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला ये वाला है, ये आपका कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। अभी तक आप लोग गलती कर रहे हैं, इसको ध्यान से करना। एक गैल्वेनोमीटर को किस तरीके से करने से एमीटर में कन्वर्ट होता है, ऊपर वाला कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर है और नीचे वाला कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर है, उसको ध्यान से करना है। ठीक है, डायग्राम भी और फार्मूला भी। ठीक है, ये फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर है, ये भी एक डेरिवेशन है 3 मार्क का। इसको भी, ये डेरिवेशन को भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, काव्य क्यों कर रहे हो वैसे, यूनिट से फिजिकल क्वांटिटी का नाम पूछता है। जैसे वोल्ट बाय मीटर दिया रहेगा और पूछेगा कि ये किसका यूनिट है बोल के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आपका पहला क्वेश्चन भी शायद यही था। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये तो कुछ क्वांटिटी का बस दिखाया गया है ऐसे।
जितने भी क्वांटिटी है ना सबका आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट से फिजिकल क्वांटिटी का नाम, जैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम दिया है, ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है। देखो यहाँ पर ये परमिटिविटी का यूनिट है और एक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है, तो ध्यान से देखना उसको, ठीक है। ये एक है एम्पियर इंटू सेकेंड इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें वही बाइट सेवर्ट्स यूज़ करके इसका डेरिवेशन हो गया, और जो मैं इम्पोर्टेंट है उसको बता रहा हूँ सीधा, ये तो सर्कुलर करंट लूप हो गया, तो एक्सिस वाला को वही चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। ये स्टेट कंडक्टर हो गया, सोलेनॉइड हो गया, लॉरेंज फोर्स हो गया, वही चीज़ें लिखा है, साइक्लोट्रॉन। ये सिंगल कंडक्टर का हो गया, टॉर्क हो गया, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर, वोल्टमीटर, वही चीज़ें रिपीट हुआ है। ये आपका मैग्नेटिज्म में मैटर, मतलब डाय पारा फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, ये आपके कॉपी में तो डिटेल में लिखा है। मैग्नेटोस्टैटिक्स कंपैरेटिव स्टडी हम लोग लिखे थे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स का, ठीक है। यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, उसको देखना। और आगे आपका सबसे ज़्यादा जो ध्यान से तैयारी करना है ये चैप्टर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी, इसका